سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم بارک وسلم صلی علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا یہ بتائیے جو لوگ جا رہے ہیں ناراض نہیں نہ ہو گئے؟ ناراض نہیں نہ ہو گئے بھائی؟ ناراض نہ ہو ماشاءاللہ، محبت سے ایک بار دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر بول دے یا حسین، اور ذرا پیار سے بولے یا حسین۔ اب ذرا سوچے کہ دنیا کا یہ دستور ہے کہ بڑے سے بڑا بہادر باپ ہو مگر بیٹے کی زبان خشک ہو جائے تو باپ کا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ بڑے سے بڑا بہادر ہو بیٹی کو پیاس لگ جائے تو باپ کا کلیجہ پھٹ جائے گا، مگر حسین دین کے معاملے میں اتنے بہادر، کہا یزیدیوں میں اپنے بچوں کی بھوک اور پیاس کو برداشت کر سکتا ہوں مگر نانا کی شریعت اجڑ جائے حسین اسے گوارا نہیں کر سکتا، حسین اسے گوارا نہیں کر سکتا۔ عمر بن سعد نے کہا حسین تو یاد رکھنا اگر ایسا نہ ہوا، اگر تم نے ہاتھ نہ دیا تو یاد رکھنا تمہارے بچے قتل کر دیے جائیں گے۔ کہا منظور ہے، کہا یاد رکھنا تمہاری جان بھی جا سکتی ہے، کہا یہ بھی منظور ہے، مگر یاد رکھنا یزیدیوں تم جو یہ سوچتے ہو حسین کو قتل کر دیں گے نانا کا دین ختم ہو جائے گا، اسلام کا مشن ختم ہو جائے گا۔ یزیدیوں یاد رکھنا حسین کی شہادت کے بعد ہر مظلوم قوم ظالموں سے لڑنے کا طریقہ سیکھ جائے گی، ظالموں سے لڑنے کا حوصلہ سیکھ جائے گی۔ اس لیے یاد رکھنا صاحب یہ میدان کرب و بلا ہے، پانی بند ہے، کھانا بند ہے کوئی دنیا میں انسان جو بتا دے کہ میدان کربلا میں حسین کی ایک وقت کی نماز قضا ہوئی ہو، ایک دن قرآن کی تلاوت بند ہوئی ہو؟ یزیدیوں کی جب کچھ نہ چلی تو یزیدی لڑنے کو تیار ہو گئے۔ امام علی مقام نے کہا 10ویں محرم کی رات آنے والی ہے، 9ویں محرم کا سورج ڈوبنے والا ہے۔ امام نے کہا عباس علمدار ذرا یزیدیوں سے پوچھئے معاملہ کیا چاہتے ہیں؟ یزیدیوں نے کہا آقا حسین سے کہیے ہم جنگ چاہتے ہیں۔ آقا حسین کی محبت دیکھو، کہتے ہیں عباس یزیدیوں کے پاس جائیے اور جا کر یزیدیوں سے کہیے یزیدیوں میرے آقا حسین ایک رات کی مہلت مانگ رہے ہیں۔ کتنی رات کی؟ ایک ایک انگلیاں اٹھا کر سب بول دیں کتنی رات کی؟ ایک رات کی مہلت چاہیے۔ حسین کربلا سے بھاگنے کی اجازت نہیں مانگ رہا ہے، حسین کربلا سے واپس جانے کی اجازت نہیں مانگ رہا ہے، حسین کو ایک رات کی مہلت چاہیے۔ حسین کو نماز پسند ہے، آج کی رات نماز میں گزر جائے۔ حسین کو قرآن کی تلاوت پسند ہے، آج کی رات قرآن کی تلاوت میں گزر جائے۔ سنو یاد رکھنا دنیا والوں، حسین کو بھوک لگی ہے مگر یزیدیوں سے کھانا نہیں مانگا، حسین کو پیاس لگی ہے مگر یزیدیوں سے پانی نہیں مانگا۔ اگر آقا حسین کچھ مانگ رہے ہیں تو خدا کی بارگاہ میں سر جھکانے کی مہلت مانگ رہے ہیں، اپنے مالک و مولا کو راضی کرنے کی مہلت مانگ رہے ہیں۔ ذرا ہم بھی اپنی زندگی پہ غور کریں۔ اے حسینیوں کیا تمہاری طبیعت نہیں کرتی کہ تم بھی زندگی میں ایک رات ویسی خدا سے مانگو جو رات امام حسین نے کربلا میں مانگی تھی، کربلا میں مانگی تھی؟ اپنے بچوں کو بیٹھاؤ اور بیٹھا کر کے 9ویں محرم کو بعد نماز مغرب اجتماعی فاتحہ کرو اور بیٹھاؤ اور اپنی بیٹیوں کے سامنے کبھی سغرا کا کردار پیش کرو، کبھی سکینہ کا کردار پیش کرو، کبھی حضرت علی اکبر اور اولو محمد کا کردار پیش کرو۔ بچوں آج تھوڑی سی پریشانی آ جاتی ہے تو تم پریشان ہو جاتے ہو، لیکن دیکھ کربلا میں پریشانی نہیں بلکہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں مگر حسین کے گھر کا بچہ بچہ بہادر ہے، نبی کے گھر کا بچہ بچہ بہادر ہے، بچہ بچہ بہادر ہے۔ اللہ اللہ یزیدی مان گئے، آقا حسین خیمے میں آئے، چراغ بجھا دیا۔ اتنے بہادر امام حسین یزیدی 22,000 لشکر جمع کرنے میں لگے ہیں اور امام حسین چراغ بجھاتے ہیں، کہتے ہیں حسینیوں تم جو میرے ساتھ یہاں تک آئے یہ تمہاری محبت قبول ہے، اب تم چاہو تو یہاں سے واپس جا سکتے ہو، میرے اہل بیت کے ایک ایک فرد کو لے لو اور واپس چلے جاؤ، حسین کبھی شکوہ نہیں کرے گا۔ تم نے جو مجھ سے محبت کی، 3 دن بھوکے پیاسے رہے، میرے ساتھ سفر کی صعوبتیں برداشت کر کے تم کربلا آئے، یہ ساری تمہاری محبت مجھے قبول ہے۔ اللہ اللہ صاحب کیسے تھے وہ حسینی؟ ان 72 پھولوں میں ایک بھی کانٹا نہیں تھا، سارے
हुसैनी बोल पड़े, आका हुसैन आपके बगैर हमारी जिंदगी किस काम की, हम आए आपकी मोहब्बत में है, ये जान रहे या चली जाए, आका अगर जिंदा है तो आपके कदमों में जिंदा रहेंगे, हमारी जिंदगी आपके कदमों में कुर्बान होगी। सुनो मेरे आका हुसैन का खुतबा, चिराग को रोशन करते हैं, कहते हैं हुसैनियों अगर जाना नहीं है तो ये समझो हमारी जिंदगी की आखिरी रात है। आज की रात जी भरकर कुरान की तिलावत कर लो, आज की रात जी भरकर इबादत कर लो। हुसैनी 9वीं मुहर्रम का दिन गुजार कर 10वीं की रात इबादत में गुजार रहे हैं, तिलावत में गुजार रहे हैं। सुल्तान रजा कहना चाहेगा 3 दिन का रोजा और ये तिलावत और ये इबादत बता रही है। हुसैनियों जब मुहर्रम का महीना आए 9वीं मुहर्रम के रोजे को न भूलना, 10वीं मुहर्रम के रोजे को न भूलना, घर भर रोजा रहना, इज्तिमाई इफ्तार का इंतजाम करना, बताना करबला में हुसैन ने हमें ये दस दिया है, करबला में इमाम हुसैन ने हमें ये सलीका दिया है। रात गुजर रही है, सैयदा ज़ैनब तशरीफ लाती है, भैया हुसैन आज की रात बड़ी कठिन है, कटने का नाम नहीं ले रही है। इमाम अली मकाम कहते हैं महन ज़ैनब हम उस माँ के बेटे हैं जिसे दुनिया सैयदा खातून जन्नत कहती है। अल्लाह अल्लाह जब बात आती है ना इमाम हुसैन के अम्मी और अब्बू जान की तो मेरा दिल भी कहता है और आपका भी दिल कहता है साहब क्या जोड़ी थी कायनात में, क्या जोड़ी थी सरकार मौलाए कायनात और सैयदा खातून जन्नत की। दूल्हा खुदा के घर में पैदा हुआ है और दुल्हन रसूलुल्लाह के घर में पैदा हुई है। आप इसका सोच सकते हैं ऐसा इंतजाम खुदा ने किया है कि साहब दूल्हा खुदा के घर में पैदा हुआ और दुल्हन रसूलुल्लाह के घर में पैदा हुई और दोनों का जब मिलन हुआ तो इस्लाम बचाने वाला शहजादा हुसैन अली जन्म लेता है। हाँ अली जन्म लेता है। आप कभी इसका तस्वुर कर सकते हैं? हजरत इमाम अली मकाम है, कहते हैं बहन ज़ैनब मैंने बचपन से लेकर आज तक कभी माँ की नमाज को कज़ा होते नहीं देखा था, कभी अम्मी जान की तिलावत को बंद होते नहीं देखा था। जानती हो बहन ज़ैनब करबला में बात हो रही है, अम्मा की तिलावत का तस्करा हो रहा है, माँ की इबादत का तस्करा हो रहा है। कहती है जानती हो ज़ैनब एक रोज मैंने अम्मी से पूछा था अम्मा बचपन से लेकर आज तक न कभी मैंने आपकी नमाजें कज़ा होते नहीं देखा, कभी मैंने आपकी तिलावत को बंद होते नहीं देखा। जानती हो ज़ैनब अम्मा के आंखों में आंसू आ गए। मेरी प्यारी माँ ने कहा था बेटे हुसैन जानते हो नमाज दुखों का इलाज है और कुरान अहले बैत का साथी है। ऐ मेरी कौम की माँ सुनो, सैयदा खातून जन्नत ने अपने बेटे को सिखाया बेटा जब जिंदगी में दुख आए ना तो मुसल्ला बिछा देना, जब जिंदगी में परेशानी आए ना तो कुरान लेकर के बैठ जाना। ऐ मेरी कौम की माँ बताओ ईमानदारी से ये फातिमा का बेटा है जो माँ की नमाज को देख कर कहता है मेरी माँ तो नमाज पढ़ने वाली है, मेरी माँ तो कुरान पढ़ने वाली है। बताओ मेरी कौम की माँ बहनों क्या तेरा बेटा भी कभी तुझे देख कर कहता है मेरी माँ नमाजी है, मेरी बहन कुरान पढ़ने वाली है, मेरी बीवी नमाज पढ़ने वाली है? नहीं, आज तो ये कहा जाएगा आज हमारी कौम की माँ बहनों को तावीज लिखाने से फुर्सत नहीं है, ये मजार को मजार, यहाँ तावीज वहाँ तावीज। मैं कहूँगा ये तावीज का मरहला बाद में है, याद रखना बेशक तावीजों से फायदा होता है मगर तावीजें बाद में पढ़ लो। जब जिंदगी में कोई मुसीबत आए ना तो रात की तन्हाई में मुसल्ला बिछा लेना और दुआ मांगना मालिक मौला करबला की रात थी और हजरत ज़ैनब मुसल्ले पे पेशानी रख करके सजदे में थी। ए मालिक मौला सारी दुनिया सो जाती तो तेरे नबी की बेटी पेशानी झुकाकर सजदे में होती। ए मौला मैं नबी की बेटी का सदका मांग रही हूँ, मैं हसनैन करीमैन की अम्मी जान का सदका मांग रही हूँ, मैं हुसैन की बहन का सदका मांग रही हूँ। ए मौला मेरे शौहर को तंदुरुस्त कर दे, मेरे बेटों को कामयाब कर दे, मेरे बच्चों के कारोबार में तरक्की दे दे। और आपसे भी कहूंगा जो यहाँ वहाँ तावीजें लिखवाते फिरते हो तावीजें बाद में लिखवाना और घर की जन्नत अपने माँ बाप से दुआएं पहले कराना, दुआएं पहले कराना। इमाम हुसैन जब मदीने से चले थे तो नाना से दुआएं लेकर चले थे, अम्मी जान की कब्र अनवर पे दुआएं लेकर चले थे। तुम भी किसी रंग में चलो मिशन में चलो तो दुआएं माँ बाप से
हाथ उठाकर बोले दुआएं माँ बाप से लेकर के चलो। अब साहब याद रखना, हजरत ज़ैनब वापस पलटती है, खेमे में जाती हैं, औरतों से कहती हैं भैया हुसैन ने हुक्म दिया है मुसल्ला बिछ जाए, कुरान की तिलावत हो। अहले बैत की पूरी रात कुरान की तिलावत और इबादत में गुजरती रही। सुबह नमूदार होती है, मार कई करबो बला वजूद में आता है। अल्लाह अल्लाह साहब एक एक करके जानिसार जामे शहादत नोश कर रहे हैं। जब तक इमाम हुसैन का एक भी चाहने वाला था, नबी के घर के एक शहजादे मैदाने करबला में नहीं गए। लेकिन जब बारी आई शहजादों की, तो शहजादों की जवान बेटा हजरत अली अकबर खड़े हो गए। कहा अब्बा हुजूर मैदाने करबला में जाने की इजाजत दीजिए। साहब जरा सा सोचिए, जमीन कांप गई, आसमान कांप उठा। हुसैन कैसे अपने जवान बेटे को करबला में जाने दोगे? मगर हुसैन कहते हैं हे बेटा तेरे बाप तन्हा इस्लाम बचाने के लिए काफी है। हजरत इमाम अली अकबर कहते हैं अब्बा हुजूर आपके बगैर ये जिंदगी किस काम की? अगर एक जवान बेटे के जीते जी बाप ने शहादत का जाम पी लिया, लोग कहेंगे अली अकबर बुज़दिल था, अली अकबर कायर था, अली अकबर अपनी मौजूदगी में इसके बाप ने शहादत का जाम पी लिया। अब्बा हुजूर मेरी ख्वाहिश है कि आपके जीते जी आपकी निगाहों के सामने नाना जान की शरीयत के लिए आपके बेटे अली अकबर के लहू का एक एक कतरा कुर्बान हो जाए। बताओ दुनिया वालों, ऐसा बहादुर बेटा कहीं आपने देखा है? मैं आज इस हुसैनी नौजवानों से कहूंगा, आज तुम भी पैगाम लेकर जाओ कि तुम्हारे भी जीते जी तेरे बाप की जिंदगी को आंच नहीं आनी चाहिए, तेरे बाप के पास गम का साइबा नहीं पहुंचना चाहिए, तेरे माँ बाप को तकलीफें नहीं पहुंचनी चाहिए। बल्कि आज के बाद ये अहद कर लो कि करबला में हजरत अली अकबर ने अपनी जिंदगी बाबा की मोहब्बत में कुर्बान कर दी। कम से कम हम पूरी जिंदगी अपनी माँ और बाप की खिदमत करते रहे, खिदमत करते रहेंगे। अब साहब इसे यहीं पे रखे, आगे बढ़े। करबला में एक मकाम आता है जिसे जहां पे हजरत कासिम तलवार लिए खड़े हैं। मालूम है ये कासिम कौन है? जरा गौर से सुनना मेरी कौम के नौजवानों, ये हजरत कासिम है। हजरत कासिम इतने खूबसूरत कि हजरत इमाम हसन हुसैन को एक जगह जमा करे तो रसूलुल्लाह की तस्वीर बनती है, और तन्हा कासिम खड़े हो जाए तो सरकार की तस्वीर बन जाते हैं। ये हजरत इमाम हसन के शहजादे हैं और इमाम हुसैन के होने वाले दामाद हैं। मैदाने करबला में तलवार लेकर के खड़े हैं। चचा जान करबला में जाने की इजाजत दीजिए। हजरत इमाम हुसैन कहते हैं ऐ मेरे भतीजे कासिम, आप मेरे भैया इमाम हसन की याद है, आपकी शहादत के बाद मेरे भाई की याद मिट जाएगी। ऐ कासिम मैं कैसे आपको करबला में जाने की इजाजत दे दूं? हजरत कासिम की आंखों में आंसू आ गए। कहा चचा जान मेरे बाबा जब शहादत का जाम पी रहे थे तो मुझे गले से लगाया था और कहा था बेटे कासिम आज तक मैं तेरा बाप हूँ और मेरी शहादत के बाद मेरा भाई हुसैन तेरा बाप है। मेरे भाई हुसैन की ऐसे खिदमत करना जैसा एक बेटा बाप की खिदमत करता है। मेरे भाई को मेरी जगह तस्वुर करना, और मेरा भाई जब मैदाने करबला में इम्तिहान में जाए तो अपने लहू का एक एक कतरा मेरी जानिब से मेरे भाई की मोहब्बत पे कुर्बान कर देना। बुरा मत मानना मेरी कौम के शहजादों, आज लाओ ऐसा कोई भाई जो भाई पे जान कुर्बान करने को तैयार हो। आओ कोई ऐसा भतीजा जो चचा की मोहब्बत में जान कुर्बान करने के लिए तैयार हो। आज हमारे पास सिर्फ नारे जिंदा है मगर हमारी जिंदगी में किरदारे हुसैन जिंदा नहीं है। अगर जिस दिन हमारे आंगन में किरदारे हुसैन का चराग लग जाए ना, चचा भी खुशहाल होगा, भतीजा भी खुशहाल होगा, माँ बाप भी खुशहाल होंगे। गौर से सुनना, हजरत कासिम ने इजाजत ली, मैदाने करबला में पहुंचे। यजीदी हजरत कासिम की खूबसूरती को देखकर ठहरा गए, ठहर गए। क्यों? इसलिए कि कासिम का चेहरा सरकार के चेहरे से मिलता था। अमर बिन साद ने चाल चली, कहा कासिम आप कासिम हो? हजरत कासिम का जवाब सुने, कहते हैं नहीं, मैं आज कासिम बनकर नहीं, आज मैं हुसैन का गुलाम बनकर आया हूं। कहा आप इमाम हसन के बेटे हैं? कहा हूं, मगर आज मैं कासिम बनकर नहीं हुसैन का गुलाम बनकर आया हूं। कहा आप